Hello everyone, welcome to MBA Karo. In this video, we are going to discuss some past year questions from divergent and convergent thinking section of MyCat. If you are going to appear for MyCat, some of you might be wondering what is divergent and convergent thinking. So if you have seen in the past, अगर आपने हमारे चैनल पे कुछ वीडियो देखे, you must have seen कि this is nothing but the reasoning section. ठीक है, जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, बाकी एग्जाम में जो रीजनिंग करते हैं वो इसमें सेक्शन को डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की रीजनिंग आती है, इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में टिपिकली पूछे जाते हैं एंड दीज आर actual questions from the past few years, right? Since I have appeared on the examination uh, every year for the past few years, so I have the repository of the questions. तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी दैट दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन स्कोर इन डबल डिजिट्स। अगर आपकी रीजनिंग स्किल्स ठीक ठाक हैं तो डबल डिजिट स्कोर ला सकते हो और माइकैट क्रैक कर सकते हो। सो क्वांट में लाइक इफ यू हैव नॉट कवर्ड ऑल द टॉपिक्स you will struggle, ठीक है। BRC again depends how good you are at your verbal ability, okay, and like what is your vocabulary, right, comprehension skills etc, but this is something which you can score। और जीके में भी काफी सब्जेक्टिव चीज होती है, तो ये है जिसमें स्कोरिंग सेक्शन है। सो ट्राई टू गिव इट सम लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, लेट अस से 25 to 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा है। even when MyCat used to be like the most difficult exam, right? काफी डिफिकल्ट होता था, क्वांट बहुत डिफिकल्ट होती थी, वीआरसी में 9 8 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। बट दिस वाज द स्कोरिंग सेक्शन बैक देन ऑल्सो, तो भी उसमें भी बच्चे जैसे मान लो 15 मार्क्स ला रहे थे, उसमें 7 8 मार्क्स तो या 10 मार्क्स तक डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग से ही आ जाते थे। तो स्कोरिंग सेक्शन है, इसको आप 25 to 30 मिनट्स देना एग्जाम में। So let us see these kind of questions which have been asked in the past in this section. Okay, so if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to our channel for our great content on all MBA entrance examinations. And if you want to see how MyCat 1 was, okay, so you can check our mock, right? So there is a free mock available, you can check that, and that will give you an idea कि MyCat में किस किस तरह के questions आते हैं। Okay, alright, so this was from MyCat 2025। तो जो MyCat 1 हुआ था इस बार का, उसका एक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने इसको स्टेटमेंट्स में लिखा है, तो डायरेक्शंस का एक आधी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन सेंस का। So it says Mr. X starts from point A and walks 51 meter towards the west. तो यहाँ से 51 चला गया A से 51, and then he takes a left turn and walks 57 meters. So left turn will be towards south, and he goes 57 meters. He then again takes left turn and walks 75 meters. So he has walked 75, and he finally takes another left turn and stops at point B after walking 86 meters. 86, and then he stops at point B. Now Mr. Y starts from point P, which is 62 meter east of point A. So यहाँ से 62 मीटर के गैप पे यहाँ पे स्टार्ट करता है 62. Okay, that is the point from where the person starts. Okay, and then it is given that the person walks 68 meter towards the north. यहाँ से ये 62 meters के distance पे, this is point P, and from here the person walks 68 meters north. Then he takes a right turn and walks 35 meters. 35 meter turn लेता है, and then he takes a final right turn and walks 39 meters and stops at point Q. So 39 meter ले रहा है and he stops at point Q. Now we need to find the distance between point Q and point B. Now if you are good with direction sense, go and solve these questions. Okay. Now if you see this, let us see the horizontal and vertical aspect. Vertically, this point is this is plus 68. We are going up 68, and then minus we are going 39, right? So if you compare this, this is the distance from between P and Q will be 29. Similarly, in this case, we are going up 86 and minus we are going 57. So we are going up by 29. So this is also 29. Okay, from this point to this point. So that means they are in the सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा डिस्टेंस दिखता है तो वर्टिकली भी
prove that they are in the same horizontal line. Now we will find the horizontal distance between them. This is 75. This till this point is 75 and this distance is 51. So that means this is 24. Okay, so this is 24 and A to P is 62. So that means this distance is 38. Okay, A से P तक 62 है, 24 तक यहाँ तक हो गया. So this means this is 38 and this is 35. So 38 plus 35, your answer is 73 meters. So direction sense is one of the topics from which you will generally get a question and an easy topic to master, and you should be able to do the question in the exam. Okay. Next question is find the odd one out. ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से odd one कौन सा है. So read these and tell which one is the odd one out. Okay, so like in this video, try to solve the questions on your own since you'll be watching this video later. You can try to watch the questions and try to solve, pause and solve. Okay? And then look at the solutions 24 and 16. ठीक है, ये हो गया. और second वाले को लिखते हैं 18, 1, B is 22 and this is 24. And last one is 2, 13, 6 and 11. And this one is 10, 7, 14 and 4. Okay, now you notice one thing, right? If you see a pattern, right, one thing that we can see is like one thing to note here is like if you add these two, we get 39, we get 40. Okay. Now A can also be written as, यहाँ पे थोड़ा सा change देखना है, A can also be written as, A can be 27 also, right? So if you write it 27 instead of 1 over here, because A is like if you repeat after 26, it becomes 27. So इन दोनों का sum 45 है, इन दोनों का sum 46 है. And this sum is 15, this sum is 17, and this is 17 and this is 18. ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इन दिस द डिफरेंस इज 1, द डिफरेंस इज 1, द डिफरेंस इज 1, इसमें डिफरेंस 2 का आ रहा है. तो एक चीज ये हो गई. या फिर आप एक ये दे सकते हो, इन दिस केस लाइक इट इज इवन, ऑड, इवन, इवन, राइट, इवन, ऑड, इवन, इवन. In this case we have even, odd, even and odd, and this is even, odd, even, even. Okay, so that is another way to look at it. So the answer is this one. So this was also asked in this year, like you had to find the odd one out. So that's how you can answer this question. Yeah, so दो different ways हो गए इसे solve करने के. Okay, let's see the next one. Find the wrong number in this series. ठीक है, तो इस बार आया था, देखो कितना easy question है. This is again from MyCat1 this year. So the difference is 17, this is 16, this is 18, this is 17 and this is 17. So the difference we are seeing 17 is consistent. तो यहाँ पे भी 16 की जगह अगर 17 रखेंगे so the number should be 87 और 17 fit better है. So the number is 87 and incorrect answer is 86. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. If faith is coded as this, what is the code for train? तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे कॉमन टॉपिक है जो आता है. लेटर कोडिंग तो आपको लाइक पता होना चाहिए कि लेटर वाइज क्या होता है. एंड दिस इज डी, जेड, आर, बी, आई. ठीक है, ओके. अब इसमें क्या करना है, एफ माइनस 2 इज डी, ए माइनस 1 इज जेड, आई एंड आर. अभी इसमें देखते हैं, +9 भी दिख रहा है एक. टी एंड वी इज +2 एंड एच एंड आई इज +1. ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको +2 सॉरी -2 -1 और +2 +1 कर देना है. ठीक है, t -2 will be equal to r, so we can eliminate this option. r -1 q, okay, so we can eliminate this option. Now we have I +2,
k, and n plus 1 is so ko. So we can eliminate all these options. This is z. अच्छा, अब हम सोचेंगे कि z कैसे आया. This is I and r. I is 9 and r is 18. So we have 27. So like add करके 27 आना is means that the reverse order. Okay. So I is the ninth from front. Ninth from backward is 9. तो वो जो 27 वाला लॉजिक होता है, that means that the nth letter from backward. ठीक है, तो उसको कुछ लोग कहते हैं 27 से subtract कर दो. तो यहाँ पे a है, a is 1. So subtract from 27, you will get 26, which is z, right? Or you can say a is first from front, z is first from the back. So this is generally one of the logics that is tested, like front and back logic. तो आपको बताना चाहिए front and back. So one way to remember this order is like front order. HOT is an acronym. So 5 के multiples होते हैं that you can use to guess the nearby letters, और फिर उसके 27 से माइनस करके दूसरा लेटर निकाल सकते हो. ओके, सो दिस इज अ मस्ट नो थिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे that are based on these. Okay, now this is a past year question in which you had to fill in the blanks, right? So this is WEU. So for your like this thing, we can put the letters here, and V is 22, H is 8 and L is 12. ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है और हमें ये फिल करने हैं. ठीक है, तो ZIZ, if you see, because ZIZ is used in options, that is 26, 9 and 26. ठीक है, और एक दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर टैप दिया है. दिस इज द क्वेश्चन ऑप्शन दैट आई क्रिएटेड. आई मीन आई हैड जस्ट नोटेड द मिसिंग नंबर्स एंड द आंसर्स. ठीक है, तो 21 और 16. ठीक है, अच्छा इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ हो रहा है -3, -4 एंड दिस इज -5. इससे -3, -4, -5 कर लो. So -3 will be, in this scenario, -3 will be 19. Okay, 4 and 7. Okay, 19, 4, 7, that is SDG. So या तो SDG होना चाहिए इसके साथ. ठीक है, SDG, is there any option SDG? Yes, there is an option. But let us check the other possibility also. ठीक है, अगर हम 21, 16 लेते हैं तो इसमें +3, +4 और +5 हो रहा है. ठीक है, तो अगर इसमें लोगे तो इसमें अगर आप +3, +4 and +5 करोगे, so you should get 25, 12 and 17, which is Y, L and Q. Is there an option YLQ? Right, it is YLQ, but YLQ should match with the tab. तो टैब के साथ YLQ मैच करेगा. अगर टैब के साथ दिया होता तो दैट वुड हैव मर्ज्ड, राइट? बट यहाँ पे अगर माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइड माइनस करेंगे. सो दिस विल बी द आंसर. सो YLQ is given, but not in this, it will not match here. If it was TAP and YLQ, then it would have matched, because we are adding in both the scenarios. Okay, so that is the answer. Okay, find the incorrect term in the series. So when I said that MyCAD used to be difficult, right? They used to ask much more difficult questions in quant, but sometimes these kind of questions also. अब ये क्या कि बहुत लेंदी है, आप नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि इतने बड़े नंबर्स पे आप नहीं देख पाओगे, राइट? फॉर स्मॉल यू कैन सी like 7 into 4 is 28, 28 into 5, तो into 4 into 5 ये तो clearly दिख रहा है. ठीक है, and into 7 is also probably visible too, like if you get to see this, that it is into 7, right? अच्छा, अब ये कितना होगा? It is roughly 1000, it is roughly 9000 into 9. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. नाउ दिस वाज अ चैलेंजिंग वन. ठीक है, बिकॉज यू विल हैव टू डू सम कैलकुलेशंस. तो into 9, if you do 980 into 9, ठीक है, 100 into 9 is 900 minus 18, or put one zero also, so you will get 8820. So this is into 9, sorry, this was into 9. अब ये कितना है रफली, अगर मैं एस्टिमेट करूं कि कितने से मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 9000 into 12 is 9 into 12 is what? 9 into 12 is 108.
और ये 9 से छोटा है 13, तो 8820 इंटू 13 करके देखो, राइट। बाय व्हाट नंबर आर वी मल्टीप्लाइंग, दैट इज नॉट क्लियर, मुझे पूरा लॉजिक समझ में नहीं आया। वन कैन एक्सप्लेन दैट व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग विद दीज पर्टिकुलर इंटीजर्स, you will uh, get a pattern, but the thing is like 13 से multiply करो, 13 2 is 26, 2 carries, and this is 104, 106, then 10 carries, 104, 114, so it should have been 114660, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इंटू 13 पॉसिबल नहीं है, तो दैट वाज द ऑड वन आउट। अच्छा, अभी देखते हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई, लाइक ट्राई दिस, दिस विल बी 17 into 17 into 19, like is 323, so if you multiply this you will get this, and अगर आप कैलकुलेटर से चेक करोगे this is was into 21, ठीक है, 21 टाइम्स हो रहा था, 3 into 20 60, तो 21 टाइम्स हो रहा था, ठीक है, और ये एक्चुअली हो रहा था 15 टाइम्स। अब ये नंबर्स क्यों बन रहे हैं 4 5 7 9 13 15 19 20, एंड व्हाई ओनली दीज नंबर्स, दैट लॉजिक आई कुड नॉट गेट, बट द थिंग इज यहाँ पे 114660 आएगा, और इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर सही बन रहा है, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 15 you will get 15 into 0 is 0, 15 6 is 90, 9 carries 99, 9 carries 60, 69, 6 carries 165 plus 6 171, so ये फिट बैठ रहा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बट ये यहाँ पे मल्टीपल नहीं बन रहा था, सो दैट वाज द इनकरेक्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पे होना चाहिए 1466 114660 should have been the term, but यहाँ पे 00 था, ठीक है। So I had noted just the series, I had not noted the logic, but when I tried to solve it, I got कि ये एक integer multiple नहीं बन रहा था, इसलिए ये गलत था, बाकी integers बन रहा है। You can multiply this by 19 and this by 21 to see the results. Okay, all right, let's see the next one. This appears to be an easy one. WFC7 AJG16 ENK34 IRO 70 and MVS 142. तो फर्स्ट नंबर पार्ट में देखते हैं, 7 becomes 16, so 7 plus 1 into 2 is 16, 16 plus 1 into 2 is equal to 34, 34 plus 1 into 2 is 70, तो प्लस 1 करके 2 कर लेना है। So similarly 142 plus 1 into 2 will be 286, okay, so 286, that means you can rule out these two options. अब क्या बचता है, आर वाई डब्ल्यू और क्यू जेड डब्ल्यू, इनमें से कौन सा फिट होना चाहिए, ठीक है। अब लेटर्स वाला देख लेते हैं, जरूरी नहीं है बिगनिंग से देखो, कहीं से भी देख सकते हो। ई से आई तक 4 का गैप है, आई से एम तक 4 का गैप है, एम से 4 का गैप दोगे तो कितना आएगा, एन ओ पी क्यू, एम इज 13 एंड क्यू इज 17, तो क्यू आ गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बाकी लेटर्स का देखोगे, एन टू आर इज +4, R to V is +4, V to Z is +4. So +4 for second letter, and third letter also if you see this is +4. So third letter also +4, and the number is n plus 1 into 2. ये हमारा लॉजिक बन रहा था, तो इजी वंस, राइट। अब ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, अब देखो ये काफी डुएबल क्वेश्चन था, and I hope you must have watched the quant video also in which we discuss the questions. तो कुछ quant questions बहुत challenging होते थे, मतलब बहुत lengthy भी होते थे, right? But divergent and convergent thinking has been somewhere where one could score, मतलब थोड़ा बहुत अगर logic लगा लोगे numbers का, alphabets का, you could score, and this time around also like it was the most scoring section, so double digits are possible in this section. Try this question in which we are given same relation we need to find out, ठीक है। तो कुछ नंबर्स में चीजें देखनी होती हैं, जैसे एक तो सीरीज में गैप है, प्राइम नंबर्स है, ये कॉमन लॉजिक होता है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, ये बहुत सारे कॉमन लॉजिक हैं, और इनफैक्ट हर किसी एग्जाम में, जो भी मैंने एग्जाम दिए उनमें यही इन कुछ लॉजिक्स के अराउंड ही चीजें रिवॉल्व होती हैं। सो व्हाट दीज आर एक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो और इन एग्जाम में भी मैंने देखा है कि सेम चीजें यहाँ भी अप्लाई हो रही है। नाउ इफ यू सी 11 cube is 1331,
and 10 cube is 1000. If you subtract, you will get 331. So 8 cube is 512 minus 6 cube is 216. That gives us 296. ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, इसमें सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. 8 क्यूब माइनस 4 क्यूब, 512 minus 64 is 512 minus 64 is 448. Okay, 7 cube minus 5 cube, 343 minus 343 minus 125, so that is 218. Okay, that is 218, right? 125 yoga, that is 218, so that is also not matching. 12 cube minus 9 cube, 1728 minus 729, that equals to 999. And finally we have 10 cube minus 6 cube, 1000 minus 216, that is 784, is also not matching. So there seems to be some issue with the options. Yeah, the options लिखने में कोई गड़बड़ हो गई. So maybe this was 218. तो हो सकता है 218 हुआ, मे बी टाइपो एरर इन द ऑप्शंस, क्योंकि 448 तो नहीं बन रहा है, 218. Maybe this is a typo, right? So let's consider it at 218 and this would be the answer in that case. ठीक है, तो लॉजिक समझ लिया. There's an error here, so it should have been 218 and then you get the answer, because others में कोई ऐसे close by कोई value नहीं दिख रही है. ठीक है, this is 448, so यही possibility हो सकती है, it could have been 218 and typed here as 118. Find x and y. So we are given x ratio 294 and 11 ratio y. ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज है, what are the numbers given here? 1100, 1331, 1210, 1100. ठीक है, अच्छा 1331 is 11 cube, right? But if you take 7 cube is 343, which does not match. Okay, so this is not the answer. Now if you do 1100, right, let's see, there are two options with 1100. 1100 is basically 11 into 100, or you can say 10 square, or you can say that 11 into 11 minus 1 का whole square. ठीक है, अच्छा मुझे 294 के लिए कोई नंबर सोचना है. So there are two options, 14 or 6. If you take 14 into 13 square, that is going to be not 294, right? This is a large number, much greater than 294. और अगर हम करते हैं 6 into 5 square, that will be equal to 25 into 6, 150, which is less than 294. Right? So this is also not fitting. ये सारे ऑप्शन डिलीट हो गए, एक बचता है 7 into 7 and 1210. So 11 square is 121 into 10. So it is basically 11 square into 10, n square into n minus 1. और यहाँ पे क्या है 7 square into 6, which is 49 into 6 or 294. So this fits over. वैसे squares, cube, इस तरह के लॉजिक पूछे जाते हैं. Okay, so that's how you get the answer. Okay, next question is find the set that does not align with the given set. ठीक है, तो इसमें ऐसा भी पूछा था which of the following aligns, which of the following does not align. तो इसमें हमें पूछा does not align. So we'll have to see and see which set does not align. So GJH is Y, RLG is K, and we need to tell which of these does not align. ठीक है, तो सबसे important है कि आपको अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट हैज बीन टेस्टेड across years. So G, J and H, if you add them you will get 25, which is equal to Y. So ये add करके आ रहा है RLG. Okay, RLG is 18 plus 12 plus 7, which is 37. ठीक है, तो आपको ये 37 तो लेटर्स होते नहीं, उसे 26 सब्ट्रैक्ट कर दो, you will get 11, which is K. So basically the set is यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, रेशियो नहीं. So basically
It is sum of those respective alphabet orders, and that should be the sum. ठीक है. It says does not align. So P and E वाला option करते हैं. P and E is 16 plus 14 plus 5, that is 31. Sorry, 35 minus 26 is 9, which is I. तो ये तो अलाइन कर रहा है. ठीक है. ध्यान देना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है. ERC 5, 18 and 3, which is 26, or Z, which is also aligning. Okay. OB, O is 15, B is 2, and E is 5. So 22, which is equal to V. रिमेंबर, अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो 3 ऑप्शन मैच नहीं किए तो चौथा वाला अपने आप आंसर हो जाएगा. ठीक है. बैक देन देयर यूज्ड टू हैव क्वेश्चंस विद 8 ऑप्शंस आल्सो. सो सिंस आई डिड नॉट राइट द ऑप्शंस, आई हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चंस इन दैट मैनर कि जो प्रेजेंट फॉर्मेट में आ रहा है. तब 8 ऑप्शन के भी आते थे. ठीक है. सो ऐसा हो सकता है इनमें से कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हो जिसमें 8 ऑप्शंस रहे होंगे. ठीक है. सो ऑप्शंस आर जनरेटेड ऑन आवर ओन. आई हैड रिटन जस्ट द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस. ठीक है. तो ऑप्शंस हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में 8 ऑप्शंस भी रहे होंगे. ठीक है. आपको मैच करना है कौन सा अलाइन नहीं करता, बट स्टिल मच मोर डूएबल देन द क्वांट वंस. ठीक है. क्वांट में अगर आपको टॉपिक ही नहीं आता है, या फिर वर्बल में लेट्स से आपको नहीं आ रहा तो आप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे रिलेटिवली इजी था. सो प्लस प्लस इफ यू डू 30 प्लस 11, दैट इज 41. 41 minus 26 if we do, that is 15, or which is O. ठीक है. यहाँ पे n दिया, so it does not align with this logic. ठीक है. तो पहले 8 ऑप्शन भी आते थे, बट इस तरह के क्वेश्चंस आते थे लाइक डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग. अगर आप ये देख लोगे तो आपको लगेगा हाँ ये आएगा, और एक्चुअली एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. मतलब जो अल्फाबेट कोडिंग है, नंबर सीरीज है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. 5-6 क्वेश्चन अराउंड इसी पे होते हैं. ठीक है. कुछ होते हैं वर्ड एसोसिएशन, वो भी देखेंगे. उसके अलावा सिलोजिज्म्स, visual reasoning, right, and some other topics are also tested. So this video will help you understand कि कल आप एग्जाम देने जाओगे तो आप पता रहेगा कि हाँ ये टॉपिक है, और इससे आपको समझ में आ गया कि ये डुएबल होते हैं. okay? अच्छा, SPAR is coded as EVWT and demise is coded as this. What is the code for birthday? ठीक है. अच्छा, अब क्या करते हैं, SPAR, राइट. पहले कोड लिख लेते हैं SPAR. थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसमें गैस करना है. S is 19, B is 16, A is 1, R is 18. EVWT. This is 5, this is 22, 23 and T is 20. ये कुछ दिख रहा है. 1 में हमने 4 ऐड कर लिया. ठीक है. इसमें तो +4 हो गया था, और पोजीशन भी इसकी यहाँ पे आ गई. ठीक है. अगर हम बाकी में भी 4 ऐड करके देखें तो सारे 4 ऐड करके तो बन रहे हैं. If you are adding 4, we are getting the subsequent code. ठीक है. अच्छा, तो ये चीज समझ में आई. अब देखते हैं जो लेट अस से 1 2 3rd and 4th लेटर. ठीक है. फर्स्ट लेटर S के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 23, दैट इज हम हियर. सेकंड 20 होना चाहिए, 1 2, दिस इज 3rd लेटर एंड दिस इज द 4th लेटर. ठीक है. ये नोटिस किया कि ईच लेटर इज इंक्रीज बाय 4 एंड पोजीशनिंग 1 2 3 4 इज चेंज इनटू 3 4 1 2. ठीक है. नाउ लेट अस डू विद demise and this demise. ठीक है. And we will add 4 to it and just see that if it works. 4 5 13, and then we have 9 19 and 5. ठीक है. इनमें 4 ऐड कर लोगे, so you will get 8 9 17 13 23 and 9. MWIHIQ, MWI. Okay, अब देखो यहाँ पे अगर M हमारा 13 है, 23 and 9, क्या ये पैटर्न दिख रहा है? और 8 9 17 ये पैटर्न दिख रहा है. तो फर्स्ट 3 are getting changed to these 3 and the next 3 are in this order. तो बेसिकली क्या कर रहा है कि हाफ से स्प्लिट कर लिया है. ठीक है. फर्स्ट हाफ लास्ट हाफ बन जा रहा है, लास्ट हाफ फर्स्ट हाफ बन जा रहा है. दैट्स व्हाट दे हैव डन, राइट. So when you have birthday, so first split into 2 parts. Like ये हमने नोटिस किया ना कि हाफ पार्ट इधर चला जा रहा है, ये फर्स्ट हाफ है, ये लास्ट हाफ में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. सिमिलरली फर्स्ट हाफ ये था, ये लास्ट हाफ में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. और लास्ट हाफ जो है वो लेफ्ट साइड को आ गया. ठीक है. बर्थडे को अगर हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, सो इट शुड बी बर्थ, BIRT,
एंड HDAY। और इसमें फिर क्या करना है, आपको 4 ऐड कर देना है। तो H plus 4 is L, so we can eliminate 2 options. Then we have D plus 4 is H, and then A plus 4 is E and C. L, H, C. और इसमें भी अगर आप ऐड कर दो तो F is M, and then V, and then X हमारा कोड बन जाएगा। So probably there could have been more options also। ठीक है, I have put 4 options to make you realize कि 4 ऑप्शन आएंगे इस बार, और इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत सबसे कॉमन इसमें कोडिंग डिकोडिंग होता है, तो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज के मिल जाएंगे, उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। एंड दे आर बेस्ड ऑन दीज अल्फाबेट बेस्ड सीक्वेंस। तो आपको अल्फाबेट्स का अगर सीक्वेंस आता है, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन। सो रिमेंबर, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस देखना, ठीक है, अल्फाबेट्स की सीक्वेंस लिख के सॉल्व करने की कोशिश करना। यू विल बी एबल टू डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल टू हिट डबल डिजिट्स इन दिस सेक्शन। तो जिन लोगों ने माइकैट 1 दिया, प्लीज कमेंट, डिड यू गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस सेक्शन among the 4 sections, and what was your score, like how much weight does it have? Now this is an interesting series, ठीक है, 1 7 36 125 354, ठीक है, सॉरी ये 254 होगा यहाँ पे, there was a typo here, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी 254 है, एंड 243 64 एंड 1, ठीक है। अब ये बहुत अलग से सीरीज दिख रही है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करके देखोगे कि आप कहोगे कि यार ये पावर्स दिख रही है, ठीक है, पर हर नंबर नहीं दिख रहा। लाइक 36 आपको पावर दिख रही है, 125 पावर दिख रही है, 243 पावर दिख रही है, 64 पावर दिख रही है, और 1 तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि क्या पावर है कि नहीं है। क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, ऐसे कुछ दिख रहे हैं ना। Let us write the numbers first and see that if they are some powers of some numbers। तो उस लॉजिक से आप, और आप जब पैटर्न बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। Now 36 is 6 square, this is 5 cube, ठीक है। अच्छा, this is 3 to the power 5। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, इफ यू एड देम दैट इज 8। तो अगर हम देखें कि ये 6 है, 7 की पावर 1 है ना। Now it clicks, like 3 of the terms were familiar, because 64 can be written in multiple ways। It can be 2 to the power 6, it can be 4 to the power cube also। दो possibilities हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 दिख रही है, ठीक है, 1 की पावर 7 दिख रही है, तो ये होना चाहिए 4 की पावर 4, और ये होना चाहिए 8 की पावर 0। सो 8 की पावर 0 करेक्ट है, 7 की पावर 1 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे 256 होना चाहिए था। दिस इज द रॉन्ग टर्म, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बहुत इंटरेस्टिंग सी सीरीज थी। लोगों ने इसमें 254 कर लिया होगा क्योंकि बाकी नंबर्स पावर वाले दिख रहे थे, बट कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि 7 किसकी पावर है और ये 1 कैसे बन रहा है, और डिक्रीज और इंक्रीज किस तरह से। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Many people must have got it right by marking 254। Okay, this is again a question based on number relation। 17 is related to 274 and 29 is related to 814। 127 is related to which number? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी होते थे बट लॉजिकली बहुत सिंपल थे। 17 and 274। Now as I said, squares cubes इस पे काफी क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा था, इट वाज बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ नंबर्स लाइक स्क्वायर्स, क्यूब्स, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, एटसेट्रा। नाउ हियर आल्सो इफ यू सी, 17 स्क्वायर इज 289, ठीक है, से आप 274 माइनस कर दो, दैट गिव्स अस 15। 29 स्क्वायर इज 841, से आप 814 माइनस करो तो आएगा 27। तो बेसिकली इट इज n क्यूब माइनस n माइनस 2, ठीक है। तो जैसे 17 की सॉरी n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, तो 17 स्क्वायर था माइनस 15 कर दिया, 29 स्क्वायर था इससे 17 माइनस कर दिया, और 27 माइनस कर दिया। तो अगर ये लॉजिक आपको हिट हो गया, तो 127 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, माइनस 125 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऑप्शंस खुद से फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है। तो लाइक इफ इवन इफ द ऑप्शंस वर स्मार्ट, यू कुड हैव डन द कैलकुलेशन, बट यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेशन की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? आप लास्ट डिजिट यूज कर सकते हो।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये भी बता रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़े। मेक श्योर दैट यू आर विजिलेंट विद द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस अगर आप विजिलेंटली देखोगे तो 127 स्क्वायर लास्ट डिजिट विल बी 9 एंड लास्ट डिजिट विल बी 5, सो द लास्ट डिजिट शुड बी 4। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, कैलकुलेट करके भी देख लेना है, यही आंसर बनना चाहिए। सो दिस अप्लाइज टू क्वांट ऑल्सो एंड सच काइंड ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस ऑल्सो, दैट यू नीड टू विजिलेंट विद द कैलकुलेशन स्किल्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है, लास्ट डिजिट है, डिविजिबिलिटी है, इन सबको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, so maybe you can reduce your calculations in the exam. ठीक है, all right, so this was one of the questions. Let us see the next one. ROPCECGSTIV, तो पहले आपको इसको वही करना पड़ेगा, इसको लेटर्स में लिख लो 18, 15, 16, 5 और 3, और GSTIV 7, 19, 20, 9 एंड 22। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, C+4 दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें +4 दिख रहा है। 5 + 4 is 9, 16 + 4 is 20, 15 + 4 is 19 और 18 + 4 is 22। तो काफी ऑब्सेशन है +4 से। एक प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे ही था जिसमें +4 दिया था। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रीऑर्डर करना है। ठीक है, अब ये देख लिया हमने कि शिफ्टिंग प्लस रीऑर्डर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है माई कैट का। ठीक है, शिफ्टिंग प्लस रीऑर्डर, दैट इज अ वेरी कॉमन। और हमने अभी कितने सारे क्वेश्चन देख लिए जिनमें ऐसा ही कुछ हो रहा है कि प्लस प्लस या माइनस करना है पर ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, तो बहुत कॉमन फेनोमेनन है। तो सबसे पहले देखते हैं, सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो दैट इज 1 2 3 4 5, so 5 comes to the first place, then second one is for S, that is for O, so 5 2, P is for P, that is 3, and I is for E 4 and 1। और यू कैन से कि जो E1 है वो सेम पोजीशन पे नहीं, और ऑड जो है वो रिवर्स हो गए। ये ऑड में थे, ऑड को रिवर्स कर दो और फिर +4 कर दो। अब एक काम करते हैं, ये वाले वर्ड में भी देखते हैं, SHOED, इसमें क्या करते हैं, E1 को ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, okay, and then we will add 4 to it and see. F H is 8 12, this is O plus E plus 4 is 9, that is I, and S plus 4 is 23, so yes it matches। ठीक है, तो लॉजिक हमारा जस्टिफाई हो गया। अब लूसिड में कर देते हैं। lucid what will happen, that U and I will remain like this, DUCIL, इसमें +4 कर देते हैं, D plus 4 is H, V, this is not V, U, VW XY, HY, then C plus 4 is G, so HY G वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, this will be M and this will be G। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग प्लस रीऑर्डर, और हमने देख लिया मल्टीपल क्वेश्चंस अभी तक जो इनसे पूछे गए हैं। और स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, तो अब देखो ये इंटरेस्टिंग, फिर से स्क्वायर एंड क्यूब्स के रिलेटेड अराउंड आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनकरेक्ट टर्म है या नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो एक पैटर्न मैंने फिगर आउट कर लिया कि माइकैट इन चीजों से पूछता ही पूछता है। ठीक है, सो डू रिवाइज दीज थिंग्स कि स्मॉल नंबर्स के स्क्वायर्स, क्यूब्स, ठीक है, और यही शिफ्टिंग ऑफ अल्फाबेट्स, तो ये करके जाना, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है। ठीक है, नाउ 99 65 25 11 215 49 513 81 1001। ठीक है, तो कुछ अजीब सा लगता है ये देख के, क्योंकि हर चीज सेम नहीं हो रही है। अब आप कहोगे कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है, क्या नहीं है, 215 इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है, 49 इज अ स्क्वायर, 513 is cube plus 181 is a square, 1001। तो पहले बड़े नंबर्स जिसमें डिस्टिंक्ट लग रहा है, लाइक 9 स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, 65 ये स्क्वायर, लाइक आपको इसको बोल सकते हो 8 स्क्वायर 1 भी बोल सकते हो, या फिर आप 4 क्यूब प्लस 1 भी बोल सकते हो, थोड़ा सा डाउटफुल है, राइट, बट जो क्लियर कट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज 7 स्क्वायर, जो क्लियर कट है उन पे रखो, 7 स्क्वायर दिस इज 5 स्क्वायर। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 स्क्वायर भी है और 3 की पावर 4 भी है। ठीक है,
स्क्वायर स्क्वायर पावर है। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 क्यूब प्लस 1, इसे लिख सकता हूँ 8 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे सीरीज में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन रिमूव करते हैं। ये देखो 10 क्यूब प्लस 1 है, 8 क्यूब प्लस 1 है, तो दिस शुड हैव बीन 6 क्यूब प्लस 1, दैट इज 217, बट ये 215 दिया है, ऑप्शन भी है। लेट अस चेक अदर्स आल्सो। ये होना चाहिए 4 क्यूब प्लस 1 विच इज 65, करेक्ट है। ठीक है, ये होना चाहिए 2 क्यूब प्लस 1। अब क्लियर हो रहा है कि दो बार 9 था, एक बार 2 क्यूब में था, एक बार 3 का स्क्वायर था, विच इज 9, सो इट इज परफेक्टली फिटिंग। दिस इज 3 स्क्वायर, ऑड नंबर्स का स्क्वायर ले लिया, 3 5 7, यहाँ पे 9 स्क्वायर हो गया। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 9 देख के समझ में नहीं आ रहा कि दो बार 9 क्यों है, बट एक बार समझ में आया कि इवन का क्यूब प्लस 1 और ऑड का स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर एंड क्यूब इज अ कॉमन लॉजिक। और अभी तक हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए जिनमें ये पूछा गया है, एंड दीज आर एक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 3-4 years। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि क्या डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग टेस्ट करता है। And apart from this, there are some other topics also which I'll tell you that have been asked in the past. Okay, find this next term in the series: B25, C24, E22, G20, K16, M14। अब इसमें अगर आप देखोगे, B is the second alphabet, ठीक है, इसको 25 कर दो तो 27 बन रहा है। C is the third alphabet, प्लस 24 करोगे तो 27 बनेगा। ठीक है, बेसिकली वही रिवर्स ऑर्डर वाली थिंकिंग। ठीक है, अच्छा, अब बी सी हो गया। B is 2, C is 3, E is 5, G is 7, K is 11, and then you have M is 13। तो क्या दिख रहा है, प्राइम नंबर दिख रहा है। तो स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अल्फाबेट शिफ्टिंग एंड रीअरेंजिंग, ठीक है, वही सारी चीजें घूम फिर के वही आ रही हैं, क्वेश्चंस उसी तरह पे रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट प्राइम क्या आता है, नेक्स्ट प्राइम इज 17 विच इज क्यू, क्यू 17 वाला 10, तो क्यू के साथ यहाँ पे 10 आ जाना चाहिए। दैट्स आवर आंसर। ओके, इंटरेस्टिंग वंस। ऑल राइट, नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन। ये काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक था। ए के एल इज दिस, आई एम पी इज दिस, एफ ओ आर के लिए क्या लॉजिक होगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अब जिसको वो वाली प्रॉपर्टी पता होगी, सम ऑफ, लाइक इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे कॉमन ही दिया होगा बट आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आई एम पी, अब क्या होता है, ए इज 1, के इज 11 12, ठीक है, 9 13 एंड 16। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा था वो था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब ये मुझे हिट हो गया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं हिट हुआ होगा, ये थोड़ा सा मतलब अलग लॉजिक का था। So if you find sum of first numbers, it is given by n, n plus 1 by 2। तो 11 अगर हम रखेंगे तो 11 into 12 by 2 which is 66। अगर आप 12 रखोगे, 12 into 13 by 2 which is 78। ठीक है, अगर आप 9 रखोगे, 9 into 10 by 2 which is 45। तो ये अगर आपको लॉजिक हिट हो गया होगा तो you could have been able to do it। So FOR will be 6, 15 and 18। 6 into 7 by 2 21, तो ये दो ऑप्शन आपके गए। देन 15 into 16 by 2 इज 120, सो ये वाला आपका आंसर हो जाना चाहिए। और 18 into थर्ड है आर ना, 18 into 19 by 2, 19 into 9 is 171, which it fits। तो यहाँ पे लॉजिक लग रहा था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो नंबर बेस्ड ही लॉजिक लग रहे हैं, वेदर इट इज स्क्वायर्स, वेदर इट इज क्यूब्स, वेदर इट इज प्राइम नंबर्स, हमने हेवीली इनका एप्लीकेशन देख लिया। Now this was also a question asked, and ये तो शायद 2023 काफी पुराना था, उसमें आया था। Okay, 9 11 24 43 72 109 156। ओके, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं।
What are these differences? These differences are prime numbers. अब आपको गया यार ये तो प्राइम नंबर सभी प्राइम नंबर है. एनीथिंग एल्स अबाउट दीज प्राइम नंबर्स? कुछ अलग जो हो? ओके, लेट्स सी दैट इज एनी प्राइम नंबर मिसिंग इन बिटवीन. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का लॉजिक है. थोड़ा सा उसमें एडिशनल लॉजिक सोचना पड़ेगा. मतलब आपको एक बेस समझ में आ गया ना कि आपको किन लाइंस के अलोंग सोचना है. प्राइम नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब के अलोंग. ठीक है. अच्छा, 13 के बाद कौन सा प्राइम आता है? 17 आता है. वी स्किप्ड 17. 19 के बाद आता है 23. वी स्किप 23. 29 के बाद आता है 31. वी स्किप 31. 37 के बाद आता है 41. 41 के आता है 43. सो बेसिकली हमने दो स्किप कर दिए. इंस्टेड ऑफ 47 इट शुड हैव बीन 43 और ये टर्म आना चाहिए था 152. सो द रॉन्ग टर्म इज 156. तो प्राइम नंबर लिया, उसमें भी स्किप करके ले लिया. ठीक है, तो ये लॉजिक बन गया. तो लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं and they ask interesting logics. Okay, another thing that is very common in these questions is word association. तो इसके questions आपको हमारे mocks में भी मिल जाएंगे word association के. इसके at least 3 to 4 questions आपके word association के आते हैं. तो 3 to 4 questions word association, around 5 to 6 questions on or even more on these coding decoding plus series. ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक जो जितनी भी अपने कोडिंग वगैरह देखी उसके. Then you have blood relations. Sometimes they ask questions on blood relations, coded blood relations, directions. ठीक है, वो सारे questions होते हैं. And like visual reasoning, syllogism. So these are the topics that are tested. ठीक है, तो word association के भी 3-4 questions होते हैं. This was an ICAT 2025 जो अभी recently हुआ था दिसंबर में. Now very good question. So you need to find a word which matches with all these words. ठीक है, अब इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था वेलक्रो. ओके, वेरी गुड आंसर. द रीजन इज दैट इट इज अ ब्रांड सिनोनिम. It's a brand synonym. Say you understand, as a Mica aspirant, you are expected to know what is a brand synonym. Brand synonym means like there is a brand which becomes so popular that people start calling it by that name. Like for example, Velcro is like it's a fastening thing. Like आपने देखा होगा ये जो uh, जिससे आप चीजों को अटैच करते हो, राइट? लेट्स से बैग्स हैं. बैग्स में आपको जो आप अटैच करते हो ना फास्टनिंग, उसे बोलते हैं वेलक्रो. जैसे बैग जो आपका जो बेल्ट जैसी होती है, जो एक इंसर्शन वाला होता है, वो नहीं, जो आप अटैच करने के काम करते हो, दैट इज वेलक्रो. So it is a brand which started it, hence it is called as Velcro. Walkman, right? Walkman was started by Sony, but the device itself used to be called Walkman. So maybe you might not have uh, heard of Walkman much because you might have been very young back then. Then Google, like it's a search engine, but we call it Google. Like we say that you can Google it. Xerox. Xerox is a name of a company, right? It is not you. It is called photocopy, but Xerox has become so popular that people call it Xerox कर दो. Yeah, Fevicol. Fevicol is it is called adhesive, but लोग बाजार में जाके क्या कहते हैं? हमें Fevicol दे दो. ठीक है. Similarly, Band-Aid. ठीक है, हम क्या कहते हैं? Band-Aid दे दो. ठीक है, वी डू नॉट रिकॉल द ब्रांड्स. और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है, आप मुझे कमेंट में बताना और कौन कौन से एग्जाम्पल है. जैसे आप कह सकते हो मैगी. ठीक है, आप क्या बोलते हो कि मैगी दे दो. ठीक है, मैगी इट इज एक्चुअली नूडल्स. ठीक है, और भी काफी जैसे हम कह सकते हैं. और मैगी हो गया, या फिर सम पीपल इवन लाइक, अब तो काफी कम हो गया, कई लोग कोलगेट को भी ब्रांड सिनोनिम ले लेते हैं. दे कॉल इट कोलगेट. या फिर आजकल अगर हम एआई टूल्स की बात करें तो उसमें चैट जीपीटी, लाइक लोग पूछते हैं चैट जीपीटी से पूछ लो. दे मीन दैट यू कैन यूज एनी एआई टूल, बट वो एक ब्रांड सिनोनिम बनता जा रहा है. ठीक है, लोग, मुझे बहुत कम लोग ऐसे देखेंगे कि लाइक जो कहेंगे चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया. लोग ये नहीं बोलेंगे यार कि जेमिनाई से किया है, परप्लेक्सिटी से. आई एम हियरिंग मोर पीपल saying about ChatGPT. So this was about the brand synonym aspect. Very good question. This was asked this time. Okay. Another question which was asked this time was this: like you need to uh, like match the word. Okay.
So, like while you are watching this video, try to pause the video, answer it, or like you can see the solutions. Okay, the answer to this was median. ठीक है, the reason interesting था, मैंने वही मार्क किया था और लॉजिक भी वही निकला बाद में. ठीक है, like this is MED, right? MED, 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 right? MED, मतलब you can call it med. Means med is a root word which means between or in center, like you can call it, or in center, something in center or in between, right? Immediate means im means negative, right? Like जैसे कहते हैं ना impossible. Immediate means there is no one in between, so there are two adjacent people. ठीक है. Comedian में I don't think ऐसे use हो रहा है exactly. Someone as a comic mediator or something like that. Then hypermedia, medieval is the central period. तो यहाँ पे सब जगह पे ये media is also, media is a medium, ठीक है, बीच का channel. So in all these words the root word is med, so that was the answer. Okay, so this was another one which said that ear, nail, head, music, tool, sound, pierce, stud, hammer. Okay, इसका आंसर मैंने इंटरनेट पे देखा, मुझे नहीं स्ट्राइक हो रहा था. So interesting thing, right? See, the answer to this was hammer. ठीक है. When I read about it, why hammer? So hammer, ear में एक बोन होती है, उसे hammer बोलते हैं. ठीक है. नेल को जब आप हिट करते हो, like you hit a nail with a hammer. ठीक है. Hammer as a head, हैमर का एक हेड होता है ना, फ्रॉम विच यू हिट, राइट. हैमर इज अ काइंड ऑफ म्यूजिक, लाइक पियानो में कुछ था, पियानो से कुछ रिलेशन था जिसमें हैमर पियानो कुछ बोलते हैं. एंड हैमर इज अ टूल ऑल्सो. हैमर एक टूल होता है ना, सो दैट इज व्हाई हैमर इज एसोसिएटेड विद ऑल दीज वंस. Then in this case we have good, wine, clear, hard and table, and we need to मैच, वर्क, ड्रिंक, लुक, ब्लो. अब क्या होता है, कई ये बहुत ट्रिकी रहते हैं. ठीक है. इनफैक्ट लाइक जो भी आप देखोगे भी, आप ऐसा होगा एक दो मैच करा पा रहे होगे, बाकी दो तीन मैच नहीं हो रहे होंगे, ऐसा भी रहता है. आप चार भी मैच करा दोगे और दो में चार में मैच हो गया, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लगता है. सबसे मुझे चैलेंजिंग यही लगता है इस सेक्शन में, क्योंकि इसमें काफी ऐसे क्लोज हो सकती है, आपको सारी चीजें नहीं पता होती. ठीक है. टू बी ऑनेस्ट, जैसे मुझे ये नहीं पता था कि ईयर में कोई बोन होती है, उसे हैमर कहते हैं, म्यूजिक, तो मैं टूल बना पाता, हेड बना पाता, नेल बना पाता. तो ये काफी ट्रिकी है, ये काफी सब्जेक्टिव नॉलेज पे है. इफ समवन हैज दैट great knowledge of idioms and other things, right, wherever it is used, then you could solve it. Okay, so I took the help of internet to figure these answers. Work is the answer in this case. ठीक है. Good work, अच्छे काम को good work बोलते हैं. ठीक है. Wine work is used for like the process where wine is created. ठीक है, तो उसे wine work बोलते हैं. You clear the work means, clearing the work means to complete the assignments. Hard work is used, we know hard work. Okay. And work table, table पे हम काम करते हैं ना, so we call it a work table. So that's how these are connected. नाउ इन यू कैन डेफिनेटली, लाइक अगर आपको डिसएग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव आंसर्स हो सकते हैं किसी किसी केस में, as long as you have possible reasons for all, you can mention that. because इनके आंसर मुझे भी एक्चुअली सारे सही नहीं पता. ठीक है. took help of internet to understand some. ठीक है. एंड इफ यू फील कि कोई इसमें करेक्शंस लगते हैं आपको, यू कैन टेल अबाउट दिस. ठीक है. ये जो आपके जितने वर्ड एसोसिएशन है, so in this case like from like I could not solve, but this is the question. If you feel कि कोई और आंसर हो सकता है, from multiple sources that I checked, the answer was mentioned as change. ठीक है. change, like you give order to change something. ठीक है. Agent is a kind of catalyst which brings a change. Like agent किसी को भी कोई change करने के लिए कोई चीज होती है. So in let's say especially in case of chemistry and all, right, you call agent or catalyst that creates change. You change motor, ठीक है, the state of motor. You change a vehicle also, or
guard changing of guards is an activity in which like क्या होता है ना नाइट गार्ड और मॉर्निंग गार्ड होता है सो गार्ड की जो चेंजिंग की प्रोसेस होती है दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ चेंज ओके सो दैट्स हाउ आई फाउंड मे बी लाइक मोटर के साथ तो बोट भी बन रहा है कि बोट इज अ व्हीकल ऑल्सो ऑर्डर बोट एजेंट बोट और गार्ड बोट ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है बोट का कोई गार्ड हो तो अगेन लाइक ऑर्डर के साथ स्टैंड भी बनता है स्टैंडिंग ऑर्डर सो देर आर मल्टीपल कनेक्शंस दैट यू कैन फॉर्म बट किसी एक को सबसे मैच कराना होता है सो इफ यू कैन फाइंड अ बेटर आंसर टू दिस यू कैन टेल अबाउट इट बिकॉज मुझे कुछ कुछ ऐसे बहुत जेनरिक सा लगा जैसे व्हीकल चेंज और मोटर चेंज बहुत से जेनरिक से एक्सप्लेनेशन लगे इसके so we need to match the word in this case and like bruiser boundary smash sink knuckle इसमें भी मुझे कुछ कुछ मैच सही लगे कुछ नहीं लगे राइट जैसे इसका करेक्ट आंसर है ब्रिज ठीक है ब्रिज लाइक क्रूजर इज अ काइंड ऑफ अ ब्रिज ठीक है ब्रिज मीन्स बाउंड्री ऑल्सो ठीक है कभी भी कहते हैं ना देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन दीज या फिर ब्रिज एज अ बाउंड्री कभी कभी बॉर्डर बनाना होता है तो उसे ब्रिज यूज कर लेते हैं वहां पे ठीक है ब्रिज स्मैशिंग अ ब्रिज ये मुझे समझ में नहीं आया सिंक बन रहा था क्योंकि ब्रिज कैन सिंक ठीक है नकल ब्रिज इज लाइक अ काइंड ऑफ अ जॉइंट दैट आई गॉट टू नो ठीक है इज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट सो नकल ब्रिज so the answer to this is bridge if you can get better because कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ चीजें कन्विंसिंग नहीं लगेंगी that is perfectly fine so if you have any answers for any of these you can tell that ठीक है now this also like काफी tricky है और बन भी नहीं रहा था uh, और like the answer to this uh, is fish ठीक है अब फिश कैसे बन सकता है फिश का स्प्रेड हो सकता है फिश कैन बी यूज एज अ मील ठीक है कोस्टर पे फिश का मेरा कोई ऐसे नहीं बन रहा था ड्राई फिश ठीक है लाइक वॉश के साथ मुझे ड्राई लग रहा था वॉश के साथ सेल्टर लग रहा था पर वॉश के साथ मील या फिर स्प्रेड वॉश कुछ कुछ मिसमैच हो रहे थे तो डू लेट अस नो फॉर दीज क्वेश्चंस व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स फिश शेल्टर मतलब इसमें कोई बेटर हो सकता है मुझे और किसी में कुछ भी नहीं लगा लाइक आई आस्क्ड टू बी ऑनेस्ट आई आस्क्ड एआई टूल्स अबाउट दिस और कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला इफ यू हैव बेटर कन्विंसिंग आंसर्स ठीक है यू कैन मेंशन इस क्योंकि मुझे लाइक कुछ कुछ चीजों में जैसे वॉश है किसी किसी चीज से वॉश विद ड्राई ठीक है वॉश विद मील मे बी बिफोर मील वी वॉश हैंड्स ठीक है बट डज नॉट मेक्स ऑल कनेक्शंस फ्लैश का शेल्टर से कुछ नहीं लग रहा था शिप में मील हो सकती है शिप कोस्टर ड्राई शिप ड्राई स्प्रेड सो ऑल फाइव तो किसी से ऐसे कन्विंसिंगली नहीं बन रहे थे then this one is agreeable that you will also agree to this answer कि इसमें मैं जो मैचिंग वर्ड विथ ऑल इज सेंटर ठीक है देखो सेल्स सेंटर जो होता है जहां पे से आपके लाइक यू कैन कॉल इट अ स्टोर और जहां से आपकी सेल होती है सेल सेंटर कह सकते हो ठीक है सेंटर बोर्ड किसी भी चीज का कोई भी सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो इस तरह से सेंटर बोर्ड हो गया ठीक है स्पोर्ट्स सेंटर हो जाता है जहाँ पे लाइक स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं ठीक है सिटी सेंटर लाइक जो अपने ऐसे होता है जहाँ पे होता है ना सिटी सेंटर जहाँ पे कमर्शियल एरियाज होते हैं उन्हें सिटी सेंटर बोलते हैं एंड सेंटर कोर्ट ठीक है तो सेंटर कोर्ट द सेंट्रल एरिया ऑफ द प्लेइंग कोर्ट्स सो दैट इज कॉल्ड सेंटर कोर्ट तो ये सारे सेंटर इसमें अग्रीएबली फिट हो रहा है बट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ये चीजें फिट नहीं हो रही थी okay so these were the questions which I had collected from previous years now this data would have given you an idea कि किस तरह के questions आते हैं 3 to 4 questions of word association then at least 5 to 6 questions of these coding decoding and alphanumeric series और number series ठीक है उसमें भी हमने कॉमन लॉजिक देखा और इंटरेस्टिंग हमने एक बार पैटर्न फिगर आउट किया कि स्क्वायर्स प्राइम्स
क्यूब्स, इनसे बहुत सारा ऑब्सेशन है माइका का, सो वेरी लाइकली दैट यू कैन गेट फ्रॉम दोस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम coding decoding also, we talked about the various kind of logics like alternate digits, reversing the alphabets, etc. Then apart from that you get questions from syllogisms. ठीक है, तो ये चैप्टर प्रिपेयर कर लेना. आई होप आपने किया होगा. अगर आप सीरियस एस्पिरेंट तो आपने रीजनिंग में ये सब किया होगा. अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है, अरेंजमेंट से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो इसको टिपिकली मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा अरेंजमेंट बनाना है, लाइक 8 people इट सिटिंग इन अ सर्कल, 9 people सिटिंग इन अ रो. ठीक है, तो मैं टिपिकली इन्हें स्किप कर देता हूँ. ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो इंडिविजुअली वो काफी लेंदी बैठता है. तो अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, विजुअल रीजनिंग से आते हैं. विजुअल रीजनिंग मे बी यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑन पेपर फोल्डिंग. ठीक है, दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन मिरर और वाटर इमेज. They can ask questions on paper folding, cutting, mirror image. Then you have pattern completion, embedded figures, etc. These are the kind of questions that they ask. Apart from that, they have blood relations also, in which जिसमें coded वाले भी पूछते हैं और normal भी पूछते हैं. तो उसके पूरे क्वेश्चंस तो नहीं नोटेड है, क्योंकि काफी लाइक इंस्ट्रक्शंस नहीं होते. ब्लड रिलेशन इज इम्पोर्टेंट. तो ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सारी चीजें होती हैं. तो अगर एक रफ एस्टिमेट लिखें तो दिस वर्ड एसोसिएशन से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, और फिर उसके बाद आपके जो कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, कोडिंग डिकोडिंग. ठीक है, और फिर सीरीज इंक्लूड्स नंबर सीरीज आल्सो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड ऑल दीज. So, or you can call it alphanumeric logic, maybe even more, maybe you can get 6 to 8 also questions from those. ठीक है, उसमें ज्यादा डुएबल होंगे, एक दो ट्रिकी भी हो सकते हैं. ठीक है, देन syllogisms, blood relations, directions. ठीक है, विजुअल रीजनिंग. ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी अराउंड 4 to 5 questions from this topic. Then अरेंजमेंट बेस्ड के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इंडिविजुअल आते हैं. इंडिविजुअल मींस एक सेट में 8 लोग सर्कल में बैठे होंगे, दूसरा एक सेट होगा जिसमें लाइन में बैठे होंगे, तीसरा कोई ऐसा हो सकता है कि एक के ऊपर बॉक्स रखे हुए. ठीक है, और या फिर एक ग्रिड बेस्ड हो सकता है कि शेड्यूलिंग बेस्ड. ठीक है, मतलब जैसे इंडिविजुअल पजल्स होंगी जिसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और एक सेट के नहीं होते, वो अलग अलग सेट आते हैं. 2-3 एक एक क्वेश्चन का सेट आएगा कि पर्सन विजिट 7 डिफरेंट प्लेसेस ऑन 7 डिफरेंट डेट्स. पूछेंगे फ्राइडे को कौन सी जगह गया था. सो दैट इज नॉट वर्थ सॉल्विंग, बिकॉज इंडिविजुअल क्वेश्चन में काफी टाइम लगता है. सो पिक दीज आर द इजी वंस. दीज आर वेरी ट्रिकी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी ट्रिकी, आई फाइंड देम वेरी ट्रिकी. और अभी हमने क्वेश्चन भी देखे जिसमें भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आंसर्स क्या है. तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, आपको कुछ बेटर आंसर्स लिखने हैं, सो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स विद एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई दोज आर द करेक्ट वंस. Okay. All right, so all the best for MyCat. We will have a session on GK as well tonight, wherein we will discuss the current affairs and relevant brand related questions that you can be asked. MyCat analysis will be done tomorrow at 11:30 once I get out of the examination hall, and question discussion session will be at 4 p.m. So some question भी discuss करेंगे, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका कितना सही गया और कैसा आपके स्कोर बन सकता है, पॉसिबल स्कोर, बिकॉज एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा, सारे क्वेश्चन रिस्पॉन्स शीट मिलती है, बट स्टिल यू गेट टू नो कि आपने क्वेश्चन सही किए या गलत किए. दैट वी विल डिस्कस इन द इवनिंग. So thanks everyone for watching this video. Do share it with fellow MyCat aspirants so they get an understanding कि किस तरह के questions आपसे divergent and convergent thinking में पूछे जा सकते हैं.